students, welcome to the class 10. Today we are going to start our lesson number 4 from the book First Flight from the Diary of Anne Frank, which is written by Anne Frank herself. The lesson is based on diary writing, so I think it's a good and a beautiful example of diary writing. So I think you can learn from this chapter how to write a diary and some of the skills and some of the good ideas to write the diary writing. So very beautiful chapter. And about this chapter, before we start the lesson, the explanation, there is a little bit written about the chapter and about Anne Frank. So that I read now before you read. Anneliese Mary means Anne Frank. Anne Frank का यहाँ पर नाम लिखा है. 12th June 1929, February March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books. There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. यहाँ पर एन फ्रैंक ये जो अभी जो लेसन्स जो है वो एक बुक थी जिस बुक का नाम था अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. तो ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है. एन फ्रैंक करके एक लड़की है, शी इज़ फ्रॉम जर्मन, और वहाँ पर जब वो लोग ज्यूइश थे, सो ज्यूइश जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था, ज्यूइश लोगों को मारने लगे थे, तब की बात है. तो तब एन की जो फैमिली है पूरी वो वहाँ से शिफ्ट होकर नेदरलैंड में चली जाती है. अपने फादर की एक ऑफिस का जो बिल्डिंग है वहाँ पर वो लोग 2 साल तक वहाँ पर ही वो लोग छुप के रहे थे. अब ड्यूरिंग दैट पीरियड और उसके बाद जब एन फ्रैंक और उसकी जो सिस्टर है उन दोनों की डेथ हो जाती है, आफ्टर दैट उसके एक फादर ही रहते हैं अपनी फैमिली में. और जब वो वापस एम्स्टर्डम जाते हैं तब वहाँ पर उन्होंने एन की डायरी को देखा और फिर सोचा कि क्यों ना इस डायरी को पब्लिश किया जाए. और जैसे ही ये डायरी जो है पब्लिश हुई, इसका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा इसको तब के टाइम में पढ़ा गया था. ओरिजिनली ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया.
और बहुत ही इसके ऊपर से बहुत ही फिल्म, टेलीविजन्स के और थिएट्रिकल ऑपेरा, ये सारी चीज़ें बहुत इसके बेस पर से ही लोगों ने बनाना शुरू किया। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि वो कितनी उस टाइम में ये बुक फेमस हुई होगी। सो फ्रॉम दिस बुक इसी बुक का एक पोर्शन जो है वो हमारे यहाँ पर इस सिलेबस में रखा हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक विच इज़ रिटन बाय एन फ्रैंक हरसेल्फ। ये उसी की डायरी का एक पोर्शन है जो हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. यहाँ पर डायरी लिखने की शुरुआत में एन फ्रैंक ने यही बताया है कि पहले तो मेरे जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा इसको पढ़ने में, कि एक छोटी सी 13-year-old गर्ल जो स्कूल जा रही है, स्कूल गर्ल है, उसके बारे में कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। पर हाँ, मेरे जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो भी फील करती हूँ मैं वो यहाँ पर अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो डायरी को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। और ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादातर किसी के साथ मिक्स नहीं हो पाते, मैच नहीं हो पाते, ज़्यादा किसी के और लोगों के साथ वो घुल मिल नहीं पाते, राइट, लेकिन नॉट ओपन अप देयर सेल्फ, अपनी आपको दूसरों के सामने वो ज़्यादा ओपन होकर नहीं रख सकते। तो ऐसे लोगों के लिए डायरी लिखना वो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर एन फ्रैंक का ये खुद का सुझाव है। पेपर इज मोर पेशेंट देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stuff-baked notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. यहाँ पर एन फ्रैंक का ये मानना है कि इंसान से ज़्यादा जो पेपर होते हैं उसमें बहुत ही पेशेंट होता है, उसमें ही बहुत ही धैर्य होता है। लोगों को सुनाने से ज़्यादा वो पेपर को सुनाना पसंद करती है, राइट। सुनाना मीन्स यहाँ पर आप उसका मतलब लिखना कर सकते हो, क्योंकि एन खुद ये सोचती है कि थोड़ी सी वो इंट्रोवर्ट है या ज़्यादा सबके साथ वो नहीं मैच हो पाती। उसका खुद का भी मानना है कि मेरा कोई इतना अच्छा क्लोज या फिर ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अच्छे से घुल सके, अच्छे से बात कर सके, या फिर कभी अपनी लाइफ की कोई भी पर्सनल चीज़ जो है वो किसी के साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पर उसको पेपर जो है वो अपना बेस्ट फ्रेंड लग रहा है, थ्रू विच शी कैन शेयर ऑल द फीलिंग्स दैट कम्स आउट ऑफ हिज चेस्ट। यहाँ पर उसकी सारी अच्छी बुरी जितनी भी फीलिंग्स है, जितने भी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस है, वो अपने उस पेपर जो उसको अपना फ्रेंड मानती है उसके साथ वो यहाँ पर शेयर करना चाहती है। Now I'm back to the point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. यहाँ पर उसने ये भी कर दी है कि यहाँ पर उसका कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have a loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. यहाँ पर उसने ये बता दिया कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा अगर मैं किसी को ये बताऊं कि 13 साल की एक छोटी सी लड़की जो है वो दुनिया में अपने आप को अलोन, अकेला महसूस करती है, पर मैं अकेली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लविंग पेरेंट्स है, मदर फादर है, उसकी एक बड़ी 16-year-old सिस्टर है, उसके आंट है और कुछ ऐसे 13 पीपल जिसको वो फ्रेंड बुला सकती है। बट यहाँ पर उसने ये क्लियरली कह दिया, बट शी हैज़ नॉट एनी, नो, आई मीन
एक भी उसका ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको वो बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड बोल सके. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. And unfortunately, that's not liable to change. This is why I have started the diary. यहाँ पर उसने डायरी को लिखने का या फिर डायरी लिखना शुरू क्यों किया उसने, ये रीज़न भी बता दिया है कि शायद ये मेरा खुद का फॉल्ट है. क्यों फॉल्ट है? क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि शायद मेरे जैसे लोग दुनिया में हो सकते हैं जो अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं. राइट, ज़्यादा ओपन अप हो के किसी के साथ नहीं घुल मिल के रह सकते, किसी के साथ जल्दी से वो मैच नहीं हो सकते हैं. शायद ये मेरा खुद का ही फॉल्ट है और इस फॉल्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैंने अब से डायरी लिखना शुरू किया. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उसने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना है और उस डायरी अपने बेस्ट फ्रेंड को एक नाम दिया है जिसे वो किटी कह के बुलाती है. Since no one would understand a word of my story to Kitty, if I were to plumb right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यहाँ पर उसने बताया है कि मेरी डायरी लिखना मैंने अभी से शुरू किया है, but nobody knows about my past. So यहाँ पर उसने अपना brief स्केच दिया है जिससे डायरी पढ़ने वाले जो हैं वो उसके पास रहे, यानी कि डायरी लिखना शुरू किया उसके पहले की लाइफ में उसके खुद के बारे में लोग जान सकें. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. यहाँ पर अपने फादर के बारे में बताया है जिसने 26 ईयर की एज में जब उसकी मदर 25 एज की थी तब उनसे शादी की और उसके बाद उसकी बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ. कब हुआ? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में. शी वॉज बोर्न इन 1926. आई वॉज बोर्न ऑन 20 जून 1929. उसके बाद एन की बोर्न हुई 1929 में. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब वो 4 साल की थी तब तक वो लोग फ्रैंकफर्ट में ही रहते थे. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. अब इन द ईयर ऑफ 1933 उसके फादर है वो हॉलैंड में जाते हैं. थोड़े से समय के बाद उसकी मदर फादर दोनों वहाँ पर सेटल होने के लिए जाते हैं. तब दोनों बहनों को अपनी ग्रैंड माँ के पास छोड़ के वो लोग वहाँ पर सेटल होने के लिए जाते हैं. बट सून इन उसकी बड़ी बहन को भी वहाँ बुलाया जाता है और उसके बाद फरवरी में एन को वहाँ पर ले जाया जाता है एज अ बर्थडे गिफ्ट. उसकी बड़ी बहन के बर्थडे पर मानो कि चलो एक गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए, ऐसे करके एन को वहाँ पर ले जाया जाता है. ड्यूरिंग दैट पीरियड वो लोग अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. आई स्टेड देयर until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Couperes, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. यहाँ पर जब उसकी मॉन्टेसरी स्कूल स्टार्ट होती है उसके बहुत ही एक अच्छे टीचर्स थे, वो उसी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस भी थे और वही उनको पढ़ाया करते थे. एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये मॉन्टेसरी स्कूल उसका ओवर होता है तब दोनों बहुत ही रोए थे ड्यूरिंग देयर फेयरवेल, बिकॉज यहाँ पर एक इट्स शो दी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट. यहाँ पर एक अच्छी सी बॉन्डिंग दोनों के बीच बन गई थी जिसकी वजह से वो लोग अपार्ट हो रहे हैं तो उन लोगों को ये चीज़
बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही लग रही है और बहुत ही दुख हो रहा है। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. यहाँ पर जब 1941 में उसकी ग्रैंड मदर है वो बहुत ही बीमार हो जाती है और उनका ऑपरेशन करना होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न एन का जब बर्थडे आता है तब कोई बड़ा सा सेलिब्रेशन नहीं होता है, बस छोटे से सेलिब्रेशन के साथ उसका बर्थडे यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ग्रैंडमा डाइड इन January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. यहाँ पर 1942 में जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तब एन बताती है कि कोई अभी तक ये नहीं जानता कि मैं अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। एंड जब उसका बर्थडे आता है तब क्या होता है, एक अपनी जो बर्थडे की सेलिब्रेशन है उसमें वो एक कैंडल और लगाती है अपनी ग्रैंड मदर की याद में। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब यहाँ से वापस वो अपनी डायरी जब लिखना शुरू करे उस डेट पर वो वापस आ जाती है। अब ये बताती है कि हम 4 लोग फैमिली में, यानी कि मेरी जो सिस्टर, एल्डर सिस्टर है वो, और मदर फादर के साथ एन की फैमिली यहाँ बहुत ही खुशहाल अपनी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही है। और यहाँ पर उसकी डायरी की शुरुआत हो जाती है जिस दिन से उसने लिखना शुरू कर दिया है, यानी कि अब तक जो भी चीज़ें वो बता रही थी इट इज़ रिलेटेड टू हर पास्ट लाइफ। जब उसने डायरी लिखना शुरू किया उससे पहले की लाइफ में अब तक उसने बताया था। नाउ शी केम टू द डे व्हेन शी स्टार्टेड टू राइट द डायरी। डियरेस्ट किटी, अब यहाँ से अपनी डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसने नाम दिया है किटी। सो डियरेस्ट किटी, our entire class is quietly in its roots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decides who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who were staked their entire holiday saving on their bet. From morning to night, it's yours going to pass? No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब यहाँ पर क्या होता है, अपने क्लास के बारे में वो बता रही है कि उस दिन की बात है जब हम सब क्लास में बैठ के बहुत ही बातें कर रहे थे और सब थोड़े से अंदर से चिंता में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर्स के साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी एंड टीचर विल डिसाइडेड कि कौन पास होकर नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है और कौन फेल होकर इसी क्लास में रहने वाला है। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड थी क्लास में जिसका नाम उसने बताया है जीएन और वो दोनों पूरे दिन मिलके बस हंस के बातें ही किया करते थे। किस बात पे हंसा करते थे? क्योंकि उनकी ठीक उसी की बेंच के पीछे 2 बॉयज़ थे जिसमें एक का नाम था CN और दूसरे का नाम था जैक्विस। इन दोनों ने अपने पूरे हॉलिडे का जो भी सेविंग की थी अपनी मनी उस पे उन्होंने बैट लगाई हुई थी पूरे दिन कि ये पास होगा कि ये नहीं होगा। बस इसी में पूरा दिन उन्होंने निकाल दिया और इन दोनों की बातें सुनकर एन और उसकी फ्रेंड जो GN है वो पूरा दिन हंसते रहते हैं। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. यहाँ पर एन का खुद का मानना ये है कि अगर मेरी मानो तो आधे से ज़्यादा क्लास ऐसी है जिसको इसी साल इसी क्लास में रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही डम है, डमीज है। और उनका मानना है कि पर ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिसीजन एट द लास्ट किसको रखना है इसी क्लास में और कौन पास होकर नेक्स्ट क्लास में जाएगा, ये एट द एंड जो डिसीजन है वो किसका होता है? टीचर्स का। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वेल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई मोस्ट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट until then we keep telling each other not to lose heart. अब यहाँ पर उन लोगों को टीचर आए और अपना रिजल्ट डिक्लेयर करें तब तक एक दूसरे को सहारा देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। भले ही छोटे मोटे डिस्कशंस क्लास में चलते रहते हैं बट ऑल ओवर एट द एंड जो
टीचर्स आके बताएंगे वही फाइनल डिसीजन रहेगा। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject. अब यहाँ पर उसके जितने भी स्टाफ में टीचर्स थे उसमें से 7 टीचर्स जो थे, जो मेल टीचर्स थे, 2 विमेन टीचर्स थी, जिसमें से उसके एक जो मेल टीचर थे जिसका नाम था मिस्टर कीजिंग, जो उसको मैथ्स पढ़ाते थे, वो उसको बहुत ही अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? बिकॉज ही लिटिल बिट मोर स्ट्रिक्ट, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे और पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने एंड को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एक्स्ट्रा होमवर्क क्या दिया? एन essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox. What can you write about that? I worried about that letter. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on the leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages of Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if no more, and there's not much you can do about inherited traits. यहाँ पर जैसे ही उसके टीचर ने उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था और सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हो बातूनी, जो बस पूरा दिन बातें ही करता रहता है। एज ए स्टूडेंट किसी भी टीचर को कोई भी टीचर जो है वो किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो बार बार क्लास में बातें करे एंड डिस्टर्ब द क्लास। सो इट्स टीचर्स नेचर कि वो टू मेंटेन द डिसिप्लिन वो स्ट्रिक्ट रहेंगे ही। बट यहाँ पर एन ने पूरा दिन सोचा उस इवनिंग, वो जब घर पे गई उसने सोचा कि मैं क्या लिखूं और उसने ये भी बताया कि अगर कोई और होता ना तो छोटी बड़ी स्पेस लेके कुछ शब्दों को लिखकर वो ऐसे को पूरा भी कर देता। पर यहाँ पर जैसे ही वो सोचती गई सडनली द आइडिया केम हर माइंड। एक अचानक से उसको आइडिया आया और उसने पूरे 3 पेज भर के मिसेस कीजिंग का जो ऐसे वो कंप्लीट किया विद सेटिस्फाइड, और उसको खुद को भी एट द एंड सेटिस्फाइड हुआ कि मैंने एक अच्छा सा ऐसे लिखा है। और इस ऐसे में उसने एक लॉजिकल रीज़न बताया है अपने ज़्यादा बातें करने का, राइट, कि वो इतनी बातें क्यों करती, इतना बोलती क्यों है। इसके लिए उसने एक पर्टिकुलर रीज़न, एक लॉजिकल रीज़न बताया है, क्योंकि बातें करना जो है वो स्टूडेंट्स का सब होता है ट्रेड्स, राइट। और मेरा जो ये नेचर बन गया है, अब इंसान का जो स्वभाव है वो बदल नहीं सकता है। क्यों? एक रीज़न उनका ये बताया है यहाँ पर उसने कि ये चीज़ मुझे मेरी मदर से इनहेरिट में मुझे मिली है, क्योंकि मेरी मदर भी इतनी टॉकेटिव है, इसकी वजह से ये चीज़ मुझे इनहेरिट में मिली है, राइट। सो आप मेरे नेचर को नहीं चेंज कर सकते, बाय आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल करूँ, पर इस चीज़ को मैं पूरे का पूरा बदल नहीं सकती। When Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, it finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack, Sweet Mistress Chatterbox." यहाँ पर दूसरी बार जैसे ही वो क्लास में आती है, फर्स्ट ऐसे के बाद तो मिस्टर कीजिंग ने उसकी बातें सुन भी ली एंड ही लाफ्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। वो बहुत ही हंस पड़े इस आर्ग्यूमेंट को लेकर। फिर दूसरी बार जब दूसरी क्लास में जैसे ही एन ने बातें शुरू करना कर दिया तो टीचर को
मिस्टर कीजिंग को लगा कि शायद एक और पनिशमेंट से इसकी हैबिट जो है वो चेंज हो सकती है। फॉर दैट रीज़न उन्होंने सेकेंड टाइम एन को एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया, जिसका टाइटल उन्होंने रखा था एन इनकॉरिगिबल चैटरबॉक्स। उसने वापस से लिखना शुरू कर दिया, दूसरी बार ऐसे लिखा, दूसरी बार सबमिट किया। क्या होता है, रीडिंग थर्ड लेसन गेट फाइनली, अब तीसरा लेसन जब शुरू, तीसरी क्लास उनकी लगती है, तब क्या होता है, टीचर ने और पनिशमेंट देना ज़रूरी समझा और तीसरी पनिशमेंट में उसको वापस ऐसे लिखने को दिया और इसका टाइटल क्या था, एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। अब ये उसको टाइटल दिया था ऐसे लिखने के लिए, राइट। द क्लास roared. I had to laugh too. Though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, it was time to come up with something else, something original. My friend Sally, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उसने टीचर ने ये सब्जेक्ट बताया, यहाँ पर तो अब हद हो चुकी थी। एन का दिमाग भी बंद हो चुका था, क्योंकि अब उसे कोई भी नया आइडिया रिलेटेड टू चैटरबॉक्स, एक ही सब्जेक्ट पे बार बार लिखना, अब यहाँ पर उसे ना तो कोई न्यू आइडिया और नया ही कोई नया इनोवेटिव आइडिया याद आ रहा था, जिसकी वजह से वो लिखना शुरू कर पाए या फिर इस नए सब्जेक्ट पे कुछ भी लिखना शुरू करें। पर उसकी एक क्लासमेट फ्रेंड थी जिसका नाम यहाँ पर बताया है सैनी, जो पोइट्री लिखने में बहुत ही अच्छी थी। उसने एन को ऑफर किया कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम इस ऐसे को वर्स फॉर्म में, वर्स मीन्स एक ऐसी पोएम जिसमें राइमिंग स्कीम, जो राइमिंग स्कीम वाली अच्छी सी पोएम होती है, इट इज़ कॉल्ड वर्स, तो तुम्हें इस ऐसे को मैं हेल्प कर सकती हूँ, पोएम की फॉर्म में लिख देंगे, राइट। तो पोएम के फॉर्म में उसने इस सब्जेक्ट के रिलेटेड लिखा और फिर क्या हुआ, पूरी क्लास हंसने लगी विद, और मिस्टर कीजिंग भी बहुत ही हंसने लगे और उस दिन उन्होंने बहुत ही अच्छा जोक सुनाया। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एन का एक स्वभाव भी देखने को मिलता है कि जैसे उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया लिखने के लिए, तो उसकी राइटिंग स्किल भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है यहाँ पर। सो उसे वैसे भी लिखना पसंद था, थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, तो इट इज़ बेटर फॉर हिम, बेटर फॉर हर कि उसने राइटिंग फॉर्म में कुछ भी, जो भी पनिशमेंट उसको मिली, उसने राइटिंग फॉर्म में लिख कर उसको कंप्लीट करना पसंद किया। एंड यहाँ पर लिखा है मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। अब यहाँ पर जैसे ही ये थर्ड पनिशमेंट वो टीचर के पास ले जाती है, वो बहुत जोर से हंसने लगते हैं, एंड जोक ऑन हर ridiculous subject, but I make sure that joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, Anne. अब यहाँ पर उसे क्या बताया, जैसे ही वो पोएम लिखी उन्होंने, वो पोएम थी अबाउट एक स्वान और एक डकलिंग और उसके 3 डकलिंग, उसके जो 3 बच्चे थे उसके बारे में। इस पोएम में उसने लिखा था कि जो फादर स्वान है उसने अपने तीनों बच्चों को इतना मारा, इतना टिल द डेथ, यानी कि उनको मार डाला। क्यों? बिकॉज वो पूरा दिन क्वैक क्वैक, दे वर टॉकिंग सो मच। अब इस ब्यूटीफुल पोएम पे पूरा क्लास हंसने लगा, उसको खुद को भी उतनी ही हंसी आई, और ये पोएम जो है वो बहुत ही उन्होंने अपने खुद के कमेंट्स के साथ टीचर्स ने पूरे क्लास के सामने सुनाई, और दूसरे क्लास में भी इवन उन्होंने ये पोएम को दिखाया। एट द एंड यहाँ पर एंड ने लिखा है, सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उस दिन से उसकी पनिशमेंट भी ख़त्म हो गई और उसको अलाउ भी किया टॉक बोलने के लिए।
और यहाँ पर एक उस दिन से ही मिस्टर कीजिंग ने एवरीडे क्लास में जो सुनाना शुरू कर दिया। सी हाउ एन ने अपने कॉन्फिडेंस से और अपने नेचर से कैसे एक अपने जो टीचर थे उसका नेचर या फिर उसके प्रति जो उनका प्रतिभाव है या फिर उनके एन के प्रति जो उनकी सोच थी उसको कैसे बदला, दैट यहाँ पर ये एंड पे बहुत ही अच्छे से एंड ने बताया है। सो हियर वी आर एंड अवर लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। दिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। जो उसकी जो बुक थी उसका फाइनल उसका जो मेन चैप्टर का जो नाम है वो एक बुक में से लिया गया था जिस बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस डायरी ऑफ यंग गर्ल बुक में से ही हमारा चैप्टर जो है वो अडेप्ट करके लिया गया था। सो आई होप यू एंजॉय द स्टोरी वेरी वेल।